हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। प्रीवियस वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। इट वाज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर and today I'm going to discuss the main or the base very important topic of your syllabus. It is the number system. The number system, or the also called the numeral system of naming or representing the number. There are various type of number system we have used in daily life. These are your binary number system, octal number system, hexadecimal number system, decimal number system, and your binary coded decimal, gray code. These are different types of number system we have used in our daily life. Computer translate, but if we talk about our computer number system, then it is only understand the binary number system, or binary number system is also called the your low level language. For this purpose, computer use the translator to convert high level language into low level language. And these low level language a computer can understand only few symbols called the digits, and these symbols represent different value depending on the position they occupy in the number system. The value of the each digits in the number system is depend on the digits, the position of the digits in the number system, and the base of the number system. And the base of the number system is also defined the total number of digits available in the number system. We have used to convert your language. We have already discussed in the previous slide. It is use translator like a compiler, assembler, and interpreter to convert high level language into low level language. The number system is used by the computer, which is always is in the form of 1 and 0. But humans use maximum time the decimal number system, and deci stand for 10. And also, if we talk about the storage unit of the computer, it use electronic switches in the computer, and these electronic switches is also used on and off state to control the data. And on state is represented with the help of 1, and off state is represented with the help of 0. And we use these bits 0 or 1 to represent the state of the switches. If both the switches are in open form, then it is represented with the help of 0 0. If first switch your first switch is open and the second switch is in closed condition, it is represented with the help of 0 1. Means open circuit is represented with the help of 0, and the closed circuit means circuit is on and there the current flow from this circuit is going through, then it is represented by 1, and it is with the help of 0 and 1. If the first switch is closed and the second is open, then it is represented with the help of 1 and 0. And if both the switches are in closed circuit, means the on 1 1 means the current is flowing from this circuit, then it is represented with the help of 1 1. The binary number system work on the same way as the decimal system, but has only two available symbols, 0 and 1. If we talk about the decimal number system, then its base value is 10 and their symbol is represented from 0 to 9. Means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9.
these range defined the number system which is in the form of decimal, means it represents the base value of the number, and these base value defined the total number of digits available in the number system. Clear? Bits and bytes. A single unit of data is called bit. अगर आप single units को डाटा की स्टोर करते हो इन द कंप्यूटर, देन इट इज कॉल्ड द बिट, एंड द बिट इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप. एंड मीन्स फ्लिप फ्लॉप क्या कहेंगे हम? फ्लिप फ्लॉप is the basic unit of storage. With the help, or we can say that the collection of flip-flops is called the register. Register we have already discussed in the previous slide is different. We have used different types of register in the computers to store the data during the processing. जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो भी प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, these all different types of register we have used by the computer to gain the or to meet the basic compatibility level of the processing unit and the memory. The computer work with the collection of bits, grouping them to represent large piece of the data such as letter and alphabet. वो क्या कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट्स वो यूज करता है किसी भी लेटर और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. मींस किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में, टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द कंप्यूटर. मींस अगर मैं बात करती हूँ तो 2 की, तो अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. इट इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. मींस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 को क्या डिफाइन करेंगे? 1 and 0. 8 bit make 1 byte, means collection of 8 bit is called the 1 byte. A byte is the amount of memory needed to store one alphanumerical character. किसी भी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें नीड होती है 1 byte की, एंड द 1 byte is the collection of 8 bits, and also 1 unit is the 1 nibble, and collection of 4 bit means 1 nibble equal to 4 bits. With 1 byte the computer can represent one of 256 different symbol of character. Means these switches are used with the help of, means one on, if your switch is on it is represented by 1, if your switch is off then it is represented by 0, if the switch is again on then it is represented by 1. On 1, off 0, 0, on 1 and off 0, means 8 bit equal to 1 byte. Next, if we convert the switch from one state to another state, means on state to off, then its value is also changes, means off is all changes automatically in 0 as per the state of the switches. On 1, and then we have used different types of common number system in our daily life. Number system is decimal, binary, octal and hexadecimal.
बेस वैल्यू डिफाइन द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हमारा जो बेस वैल्यू यूज होगी वो 10, बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8 एंड हेक्साडेसिमल के लिए 16. And the range of these number, if we talk about the decimal number system, then the range of the means total number of digits available in these number system is defined with the help of the range of the numbers. मीन्स अगर हम डेसिमल नंबर की सिस्टम की बात करते हैं तो जो सिंबल्स की रेंज होगी वो होगी हमारी 0 to 9, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. नंबर सिस्टम, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बेस वैल्यू क्या होगी 2 एंड देयर सिंबल इज 0 and 1. 0 and 1. Now we talk about the octal number system. Their base value is 8 and the range is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Means the symbol should be always less than 8. सिंबल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किससे लेस होगी 8 से. If we talk about the hexadecimal number system, then it is represented from 0 to F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 denoted in hexadecimal with the help of A, 11 denoted with the help of B, 12 with the help of C, and 13 with the help of D, and 14 with the help of E, and same 15 with the help of F. These value and these are the symbol we have used in the hexadecimal number system. Now their quantities, how to represent the quantities in different number system. If we talk about the 0 in decimal numbers, and then binary representation is also 0, octal is also 0 and hexadecimal is also 0. If and 1 is also represented by 1, 1, 1. If we talk about the binary decimal number of 2, then it is in the form of binaries 1, 0. How to represent in binary? Like if we convert means it is the base value 2 in decimal, and this conversion of binary in the 2 1 ja 2 means remainder is 0 and 2 0 1, and written from bottom to top in this form, means 2 in decimal equal to 1 0 in the form of binary. Means value of this symbol is always less than or should be less than from 2, means 1 and 0, and the value in decimal is always less than 10, it is 2. If we talk about in octal, then it is less than 8, 2 is less than 8, means अगर octal की बात करते हैं तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू ऑफ octal इज, बेस वैल्यू क्या होगी इसकी? बेस वैल्यू होगी आपकी 8, और बेस वैल्यू किस हेक्साडेसिमल की क्या होगी? 16. तो मीन्स डेसिमल में जिसकी भी वैल्यू लेस देन है 8 से, तो ऑक्टल में वो क्या आएगा? सेम होगा, मीन्स 7 तक आपकी क्या होगी? वैल्यू सेम होगी. और ऐसे ही सेम इन हेक्साडेसिमल जो आपकी 9 तक डेसिमल की जो वैल्यू होगी वो हेक्साडेसिमल भी मल में भी क्या होगी? लेस देन 16 ही होगी. ओके, लाइक इन आप देख सकते हो कि अगर मैं डेसिमल की बात करती हूँ, इन केस ऑफ डेसिमल, डेसिमल में आपकी जो वैल्यू है 8 की, वो बाइनरी में क्या होगी? 1 0 0 0. मीन्स अगर मैं बात करूँगी
8 की 8 2 2 4 जा 8, your remainder is 0, 2 2 जा 4, remainder is again 0, and now 2 1 ja 2, remainder is again 0, and 2 0 2 0 the 1, and remainder is 1, and return write in the form of this 1 0 0 0, or it is in the form of binary, means 8 in the form of decimal is represented in binary number system is 1 0 0 0, and same in octal 10. Why it is written in 10 in the form of octal number system? Like अगर मैं बात करती हूँ octal की, तो आपका 8 क्या होगा? octal में 8 1 जा 8, मीन रिमाइंडर इज 0, एंड अगेन 8 0. तो आपका जो octal होगा इन ऑक्टल फॉर्म में जो आपकी 8 की वैल्यू होगी वो होगी 108. ओके, अंडरस्टैंड? और इन हेक्साडेसिमल 8 वैल्यू इज लेस देन 16, सो इट इज राइट सेम एज लाइक इन डेसिमल, एंड 9 9, बट इन केस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 9 8 1 ja 8, remainder is again 1, 8 0, remainder is 1, months 1 1. Okay, is octal number system. Or the 9 value is always sorry, 9 is less than 16, then it is same as 9, and 10 A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, and 15 F. समझ आ गया? आगे चलते हैं हम. कन्वर्जन अमंग द बेसिस, हमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पेपर में डायरेक्टली आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपके किसी भी गेट के एग्जाम में या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हमेशा आपके 3 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ टू कन्वर्ट द वन बेस वैल्यू फ्रॉम द अनदर बेस. द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ दीज कन्वर्जन आर योर decimal number system to octal number system, and also convert decimal to hexadecimal and decimal to binary, and also convert decimal to hexadecimal, octal to binary, and also convert decimal to octal and binary to octal. These type of conversion we have used or we have understand. These are if we take the quick example, if 25 in the decimal number system, means value of 2 and 5, these digits, the value of 2 and 5 is less than 10, it is converted into binary. If you want to convert 25 into decimal number system, then we have used like 2 5 divided with by 2. 2 1 जा 2 means 12 2 जा 24, 12, आपका रिमाइंडर बचा 1. के बाद 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 0. के बाद 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन 0, एंड 2 1 जा 2, remainder again 1, and 2 0. जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, डेसिमल डिजिट्स को या जो भी आपकी डिजिट्स है बीच में, इसको डिवाइड करना है रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम से. हमारा रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम क्या है? 2. हमें 2 की फॉर्म में, बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में चाहिए. और किसको कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है हमें 25 को. तो हम 25 को कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक हमारा क्वेश्चन क्या ना आ जाए 0, और हमारा जो भी रिमाइंडर आए हैं उसको इस अपोजिट फॉर्म में, मींस बॉटम टू टॉप हम क्या कर देंगे, राइट करेंगे. मींस 0 1 0 0 एंड 1.
तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, सॉरी 200, तो ये रिमाइंडर यहाँ क्या था 1 ऑल्सो 1, तो इट इज सेम एज दिस. Now if we convert the decimal number system into octal number system, अगर हम डेसिमल को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कन्वर्ट किसको करना है 25 को, किसको करना है 25 को, और किस बेस में चेंज करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, किस में करना है ऑक्टल नंबर से. तो मीन्स आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 8 से, एंड 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या है आपका 1. नाउ 8 0 0, तो रिमाइंडर क्या आया 3, मीन्स आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है 0, आपका रिमाइंडर 3 और 1, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल फॉर्म फ्रॉम डेसिमल. एंड आप इसको चेक कर सकते हो कि 1 की वैल्यू भी लेस देन है 8 से और 3 की वैल्यू भी लेस देन किससे है 8 से, तो आपका क्या होगा 31, मीन्स 25 को अगर हम ऑक्टल में बोलेंगे तो वो क्या होगा हमारा 31. अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल. तो हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कन्वर्ट किसको करना है 25 को किस में करना है हेक्साडेसिमल में, तो 16 1 जा 16 2 जा 32 होगा, तो 1 पे गया तो आपका क्या आया 25 में से 16 गए कितना बचा 9, ठीक है, और 16 0 को 0 पे आपको 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया 1, तो मतलब एंड रिटर्न फ्रॉम बॉटम टू टॉप 1 9, तो आपका ये क्या हुआ 16. आपको समझ आ गया हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस. डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेसिमल टू ऑक्टल आपका ये है डेसिमल टू सॉरी ऑक्टल आपका ये बाइनरी ये और हेक्साडेसिमल 90. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी. अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेसिमल टू बाइनरी किया था हमने विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, मींस जिससे हमें मतलब डेसिमल को अगर हमें बाइनरी मींस कन्वर्जन किस में करना था बाइनरी में, तो हमें डिवाइड किसके साथ करना पड़ा 2 के साथ. अगर हम अब चाहते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 के साथ 2 की पावर के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने का. तो व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज how to change the binary to decimal, the technique we have used to multiply each bit by 2 raised to power n, where n is the weight of the bit, means हर bit को हम क्या करेंगे 2 raised to power n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और n क्या होगा उसमें हमारा वेट होगा किसका बिट का. द वेट इज द पोजिशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑन द राइट. वो क्या कहता है जो वेट है वो कैसे डिफाइन होगा हमारा पोजिशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0. वो क्या कहता है कि जैसे हमारा कोई भी हमें क्या करना है, देखो हमें करना क्या है बाइनरी टू डेसिमल, मीन्स हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है. अगर मैं बाइनरी में कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मान लो हमारा बाइनरी नंबर है 110, ये हमारा क्या है बच्चे बाइनरी नंबर. हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. किस में कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में. वो क्या कहता है मल्टीप्लाई ईच बिट. हमारी बिट्स कौन कौन सी है बाइनरी नंबर सिस्टम की 3 बिट है 0 1 1. बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इनकी डिजिट्स की वैल्यू हमेशा किससे लेस होगी 2 से. समझ आ गया. तो हमें करना है मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 रेज टू पावर n एंड n इज द वेट ऑफ द बिट. वो क्या कहता है हर बिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 रेज टू पावर n, और जिसमें n क्या है वेट. वेट क्या होता है वेट इज द पोजीशन ऑफ द बिट. पोजीशन अगर हम बिट की बात करते हैं तो पोजीशन इसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है 0, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 2. ये हमारी क्या है बच्चे पोजीशन है. ठीक है. तो वेट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, मीन्स हमने स्टार्टिंग कहाँ से की 0 से, और 0 कहाँ से ऑन द राइट, और राइट में ये है हमारा लेफ्ट और इधर है हमारा राइट. मीन्स राइट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट.
right is called the most significant bit, and this left is called the least significant bit. Least significant bit. The weight is the position of the bit starting from 0 on the right, means our right side is started from, it is your most significant bit, and it is your least significant bit. आपके आते ही ठीक हो. Now we take the example how to convert the decimal, or we can say that convert the binary number to decimal number system. Then we have used the multiply method. From we have taken from right and going towards left, means one, 0, 1, 0, 1. Starting multiply with the help multiply from bit from right by the 2 raised to power 0. 2 raised means 0. 0 क्यों यूज किया मैंने? अब मैंने अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में आपको बच्चे समझाती हूँ तो देखो, ये हमारी पोजीशन 1, 0, 1, ये 2, 4 एंड ये 5. आपकी बिट्स की पोजीशन पता चली, ये है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा 2 रेज टू पावर n इज द पोजीशन, और वी कैन से इट इज द वेट, मींस फर्स्ट बिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट बिट हमारी क्या है 1, फर्स्ट बिट हमारी क्या 1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर n, और n क्या है हमारा पोजीशन, तो हमारी इसकी पोजीशन क्या होगी 0. ओके, प्लस सेकेंड बिट क्या है, सेकेंड बिट क्या है हमारी 1, अगेन 1, एंड मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 2 रेज टू पावर n इज द पोजीशन ऑफ द सेकेंड बिट एंड द सेकेंड पोजीशन इज 1. अगेन थर्ड बिट इज आवर 0 एंड मल्टीप्लाई विद द हेल्प with 2 raised to power n is the position of the next bit, it is 2 raised to power 2 plus next bit is our 1 multiply 2 raised to power 3. आप इसमें समझ सकते हो, जैसे हमारी फर्स्ट पोजीशन क्या थी बच्चे, फर्स्ट पोजीशन थी हमारी 1, तो हमने फर्स्ट पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 रेज टू पावर 0 से. सेकंड बिट है हमारी 1 और ये है 0, 1, 4, 5, तो 2 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई. फिर थर्ड बिट है हमारी 0, पोजीशन क्या है सेकेंड, पोजीशन क्या है हमारी सेकेंड, तो 2 रेज टू पावर 2, फिर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 एंड 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4 एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5. मीन्स ये आपकी सारी बिट्स हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और मल्टीप्लाई करना है आपको 2 रेज टू पावर n से, और जो n है आपकी बेटा ये जो वैल्यू है वो है आपकी पोजीशन ऑफ द बिट्स. समझ आ गया? तो इनको क्या करना है, बाद में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. मीन 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 1, तो 1 आया. सेकेंड में 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 मीन्स आपका क्या आया 2 आया. थर्ड 2 रेज टू पावर 2, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 4, आपका अगेन 0. 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8, तो आपका अगेन 8. 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 होता है आपका 16, तो 0 इंटू 16 इक्वल अगेन 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर
टू रेज टू पावर 5 होता है आपका 32, इट इज अगेन 32, एंड देन इन लास्ट ऐड ऑल दीज नंबर। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आया है 43, एंड दीज 43 इज इन डेसिमल फॉर्म। समझ आ गया आपको? Then the next slide, how to convert the octal to decimal number system। तो सेम वही आपका जैसे डेसिमल टू किसी भी नंबर सिस्टम टू अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो डिवाइड करते थे। अब आप क्या कर रहे हो, ऑक्टल टू अगर डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हर वैल्यू को, तो हर बिट्स के साथ, मीन्स मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 8 raised to power n, where n is the weight of the bit and the weight is the position of the bit starting from 0 on the right। ओके, मीन्स आपकी पोजीशन क्या है इसमें 0, 1 और ये आपकी 2। ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है? जैसे आपके, मैं ये एग्जांपल अपना मैनुअली मैं आप करवा देती हूँ। जैसे आपका 7 2 4 ये आपका है ऑक्टल में, इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं हम बाइनरी में। तो आपकी पोजीशन इसमें क्या क्या है, 2 2, तो ये आपकी पोजीशन है। हमें क्या करना है, 4 मीन्स किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। कहाँ से, ऑक्टल से, मीन्स 8 raised to power 0 by 4 plus raised to power 1 by 2 plus 8 raised to power 2 by 7, and this 8 raised to power 0 equal to 1 into 4 plus 8 raised to power 1 same 8 into 2 plus 8 raised to power 2 means 64 multiply 7। तो आपका क्या होगा, ये 4 into 4 plus 8 into 2 is 16 plus 4 into 7 equal to 448 and total sum is 468। ये 468 आपका क्या होगा, नंबर सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, एंड देयर वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ दीज डिजिट always be less than the value of 10। and how to convert of hexadecimal to decimal number system, same procedure we have apply on these conversion, multiply each bit by 16 raised to power n, by n is the weight of the bit and the weight is the position of the bit starting from 0 on the right। Same formula applied on these, C multiply 16 raised to power 0, B multiply 16 raised to power n, these are the position 0 1 and 2, ये आपकी पोजीशन होगी। तो 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2, और तो कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट सिग्निफिकेंट सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बी से, और फ्रॉम राइट साइड। तो 16 raised to power 0 multiply C, 16 raised to power 1 multiply B, and 16 raised to power 2 multiply with A। And we know, as already discussed, the value of A equal to 10, B equal to 11, C equal to 12, and D equal to 13, E equal to 14, and F equal to 15। and to convert the value of C equal to 12, okay, C equal to 11, C equal to 11, and A equal to 10। and after solving this, we get the value of decimal number system of ABC 16, it is 2748। and how to convert decimal number to binary system, as already discussed, to divide the number with the 2 and written in from most significant to low significant bit।
हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल। मैं बच्चे आपको ना ये क्लास आपकी मैं बोर्ड पे ले लूंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैनुअली आप ये ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, और मैं आपकी एक जो क्लास होगी वो बोर्ड पे मैं आपको इसको अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगी, या उसको अच्छे से आपको समझ आ जाएगी इससे। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्टल टू बाइनरी। अगर हम मैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करती हूँ तो वो कन्वर्जन कैसे जाएगा। टेक्निक टू कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंट। वो क्या कहता है, हर एक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या करो, चेंज करो। जैसे मैं बात करती हूँ, हमारा है 704। एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके सिंबल कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 4 5 7। अब हमारा हाथ, अगर मैं मुझे इसने इन्होंने बोला है कि कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको लिखती हूँ तो वो क्या होगा, इस फॉर्म में लिखते हैं 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, पावर 2, इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, मीन्स 2 raised to power 0 क्या होता है आपका, 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 आपका होगा 2, एंड 2 raised to power आपका 2 raised to power 2 आपका होगा 4, 4 to 7। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है अगर मैं 3 बिट में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इस जो भी वैल्यू है उसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, रखेंगे 0। मीन्स अगर मैं तो 0 1 4 5 7, तो 0 अगर मैं बाइनरी ये हमारा 0 है ऑक्टल में, अगर मेरे को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपके 4 to 1 में से 0 वैल्यू कोई नहीं है, तो आपको क्या करोगे, पुट्स 0 0 for all these 3 values and 1 put 1 below the 1 value, means 1 के नीचे 1 और यहाँ पे 0 0, 2 के नीचे 2 के लिए 0, 2 के नीचे 1 अदरवाइज 0, 3 के नीचे 2 plus 1, आपका 2 plus 1 क्या होगा, 3 होगा, तो मीन्स यहाँ 0 और 1 1। नाउ 4 देन 1 0 0, 5 4 plus 1 5 मीन्स 4 के नीचे और 1 के नीचे 1 अदरवाइज 0, 6 4 plus 2 मीन्स 1 1 0, एंड 7 के लिए 4 1 1 1। दिस इज द 3 बिट बाइनरी फॉर्म ऑफ ऑक्टल नंबर। मीन्स 3 बिट में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्टल नंबर अगर बाइनरी की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 2 raised to power 3 इक्वल टू 8। मीन्स आपका 8 जो ऑक्टल वैल्यू है वो विद द हेल्प ऑफ 3 डिजिट से हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करती हूँ तो 2 raised to power 4 इक्वल टू 16। मीन्स आप 4 विद द हेल्प ऑफ 4 डिजिट आप बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को। बट इन केस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव टू यूज द 3 bits to represent the binary number of any octal number system। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू ए 3 bit इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। वो क्या कहता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसकी जो भी बाइनरी फॉर्म है ना 5 की क्या होगी, 3 डिजिट बाइनरी फॉर्म 5 की क्या है बच्चे, 1 0 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1। अब 0 की और आपकी 5 की क्या थी, 5 की 0 की आपकी 0 0, एंड 7 is represented with the help of 1 1 1, आपका 1। तो ये जो होगा आपका बाइनरी
नंबर सिस्टम है किसका, 705 का, इन केस ऑफ बाइनरी डिजिट्स। आपका देखो ये हो गया 111 000 एंड 10। अंडरस्टैंड? I proceed on the next slide. It is conversion of hexadecimal नंबर सिस्टम। मैंने डिफाइन किया आपको, अगर हेक्साडेसिमल को मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू क्या होती है, 16। बाइनरी की कितनी होती है, 2। तो विद द हेल्प ऑफ 2 raised to power 4 मीन्स आप विद द हेल्प ऑफ 4 डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज किया था कि कैसे कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट। तो क्या करेंगे हम, एफ के लिए हमारी 1 बिट रिप्रेजेंट करती है, ए के लिए 10 और 000 एंड 001 एंड दिस combine all these number in the form of one number, then it is in the binary form. Decimal to octal again divided by 8 means 8 divided by 1 2 3 5 1 2 3 4 is divided by 8 is 154, again remainder 2, then again 18 multiply 19 gives the remainder 2, and in the same procedure we can find the value of octal number system from decimal number system. And how to convert decimal to hexadecimal, same procedure we have applied, divide by the decimal number system with 16 and take the remainder from right to left. Okay, and binary to octal multiply ग्रुप बिट्स इन 3 स्टार्टिंग मीन्स अगर वो क्या कहता है, अगर हमें बाइनरी को किसमें करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इन द फॉर्मूला। हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ 3 डिजिट से डिफाइन हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 डिजिट्स के और इसके आगे लगा देंगे। तो आपका 1111 क्या होता है, 7 01 01 ये 1 2, तो ये क्या हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1 2 4 मीन्स 3 और 001 अगेन 1। तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ 10110101 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1327 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। समझ आ गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, बाइनरी डिजिट जो भी हमें दे रखी है हम उसकी राइट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट साइड से हम उसकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देंगे और टेबल में से सिलेक्ट करके जो थ्री डिजिट्स की जो ग्रुपिंग बनी है उसके ऑल्टरनेटिव जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर है वो राइट कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वी हैव कन्वर्ट द बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी रहेगा। जैसे हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने 3 की ग्रुपिंग की थी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम बाइनरी नंबर को इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल में विद द हेल्प ऑफ 4 डिजिट्स के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अब किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 4 की, जिसमें 4 की अगर हम ग्रुपिंग करते हैं 10111101 और यहाँ पे लिखेंगे 0। अब ये क्या होगा 1 2 4 1 4 एंड 1 4 आपका ही होगा। तो मीन 8 और 2 10 और 1 11, ये आपका क्या आया है 11। ये आया आपका 8 और 2 10 अगेन 11 और बची ये आपका आ गया 2 ओनली 2। मीन्स ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में
11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से एंड अगेन 11 को रिप्रेजेंट करेंगे A से और 2 इज सेम एज हेक्साडेसिमल मीन्स 2BB is the hexadecimal number system of this binary number system. Now convert to octal to हेक्साडेसिमल। अगर हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल हमारे साथ एक टेक्निक है, हम यूज कर सकते हैं कि हम पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। मींस ऑक्टल सिस्टम को 3 डिजिट्स की फॉर्म में हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कर दें, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमें ऑक्टल टू बाइनरी का भी पता है और हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वो भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो क्या होगा, यूज बाइनरी एज एंटर, तो मीन्स इसमें हम दोनों लैंग्वेज के बीच में मीन्स दोनों नंबर सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम यूज करेंगे, वो होगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। मीन्स अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। अब ऑक्टल जब है, अब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का यूज करेंगे, 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 ये यूज करेंगे। और हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, उसको बाइनरी को कन्वर्ट कर, यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग 3 3 की बनी है, तो हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे बच्चे 4 4 की ग्रुपिंग बना के उसकी वैल्यू को निकाल सके। अब जैसे मेरे को ये करना है 1076 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ये हमारा क्या था, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट किया मैंने, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी की वन in octal number system is represented 0 0 1 in the binary number system and 0 is represented 0 0 1 1 1। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बाइनरी नंबर सिस्टम की हम 4 की ग्रुपिंग बना दे रहे हैं। जैसे हमारा ऑक्टल में अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूँ तो हमारा ये बनेगा 0 1 1 1 1 1 अगेन 0 0 0 एंड 1 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 की ग्रुपिंग बना देंगे, 4 जाएगा अगेन 4 एंड 4 ये होगा। तो ये हमारा 1 1 1 0 मीन 0 1 2 4 0 1 2 4 मीन सॉरी 1 2 4 8 4 12 और एक 13, ये हमारा आ गया 30। ये आ गया हमारा 1 2 मीन 3, ये हमारा आ गया 1 2 3 4 4, ये हमारा रहेगा अगेन 2, तो 2 3 और 30। बट इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13 इक्वल टू 14। पर ये हमारा क्या 8 और 4 12 और 14, सॉरी यहाँ पे हमारा आया 14, तो ये 14 किसका रिप्रेजेंट करेगा, हमारा को। तो आपका क्या नंबर सिस्टम आ गया, इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यू कैन राइट 2 3 3। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो गया, वही हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में भी क्या करेंगे, हम इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम यूज करेंगे विच इज आवर बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें क्या करेंगे, हम पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर सिस्टम का 3 3 का ग्रुप बना के हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये हमारा आ गया बच्चे, हमारा ये था, ये हमारा है हेक्सा, ये हमारा आ गया बाइनरी। अब बाइनरी को हमें अगर कन्वर्ट करता है ऑक्टल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, ग्रुपिंग ऑफ 3 डिजिट की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आपका ये आएगा 1004 0011 10047। तो ये आपका जो होगा ये पूरा का पूरा है 17414। इट इज इन द octal number. These are some exercise you can try on this exercise. अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, मैं भी मानती हूँ कि फर्स्ट टाइम आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर है जो इसका पूरा का पूरा अच्छे से डिफाइन करूँगी जो मैनुअली ऑन द बोर्ड. तो फॉर दिस थैंक यू.